Hello everyone, how are you doing? This is Pawan Kumar and I welcome you in my channel Tutorials of English by Pawan. Friends, हम लोगों ने टेंसेस शुरू किए थे और प्रेजेंट टेंस मैं कंप्लीट कर चुका हूँ. उसके बाद मैंने पास्ट टेंस भी कंप्लीट कर लिया है. And today I'm going to start future indefinite tense. This is the future indefinite tense which is also known as simple future tense. Now understand where we use this tense. पहले हम बात करेंगे कि इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के, which I have written on the board. You will see and then you can make your language. इससे पहले मैं बताऊँ आपको कि स्ट्रक्चर क्या है, ज़रा समझ लीजिए. Where we use it. Now understand anything which happens in the future. Well, lot of things happen in future. For example, tomorrow it is Sunday. Consider that it is Sunday tomorrow. Now आप संडे को घर पर क्या करोगे? आप शायद आराम से उठेंगे, आप जल्दी नहीं उठेंगे. आप शायद कुछ नाश्ते में परोठे एक्सेट्रा पसंद करते हैं, या आप ब्रेड खाएंगे, या आप शायद कहीं पर घूमने जाएंगे, या आप मूवीज़ देखने जाएंगे, आप क्रिकेट खेलेंगे, या आप बहुत ज़्यादा सोएंगे. डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटीज़ क्या होने वाली हैं. सो एक्टिविटीज़ विच विल हैपन इन द फ्यूचर. आपने प्लान कर लिया, अब वो फ्यूचर में होंगी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर? Future doesn't mean that it is tomorrow. Future means any time which is coming. Suppose after finishing this video, whatever the time it is, it will be future tense. शाम के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ये फ्यूचर ही जाएगा. Anything you will do in the coming time is the future tense. Now it is future indefinite tense. It means कौन सी endings? Friends, if you haven't watched my previous videos, you gotta watch them, because until you watch the beginning, that what kind of things are there, you will not be able to understand everything completely. The first video related to imperative sentence and how to make sentence, because उसके बाद आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी. Now talking about endings, देखो there are different endings. Future means ending गागेगी की रहेगी. So इसमें क्या होगा? For example, मैंने अभी आपसे बात की, मैं कल क्रिकेट खेलने जाऊंगा, आप लोग कल enjoy करेंगे, हम लोग घूमने जाएंगे, तुम मेरी बात सुनोगे, ऐसा होगा वैसा होगा, मैं शॉपिंग करूँगा, मैं मूवीज़ देखने जाऊँगा, और मैं बहुत सी चीज़ें करूँगा, या वो करेगा, या कोई भी पर्सन करेगा. That is future indefinite tense. Clear? Now let's look at the structure. Remember, ga, ge, gi. This is the ending. These are the endings. Ga, ge, gi, या sometimes if you talk about me, आप मेरी खुद की बात करेंगे, आप कहना चाहते हैं मैं तुमसे नहीं मिलूँगा, मैं तुमसे नहीं मिलूँगा. It means it is the same thing. गा, गे, गी. और ये पर्सनल जब हम बात करते हैं तो in हिंदी it's like that, मैं तुमसे नहीं बात करूँगा. Okay. गा, गे, गी. नाउ अफर्मेटिव जो हमारे पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको अफर्मेटिव बोलते हैं. जैसे कि आप सीधी सी बात विदाउट नोट जो बात करना चाहते हैं, जिसमें नेगेटिव नहीं है, कैसे काम करेगा? एनी सब्जेक्ट मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट यूज़ कर लीजिए. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एंड नाउन. रिमेंबर, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है ये दो चीज़ों से बनता है, नाउन और प्रोनाउन. नाउ आइदर इट कम्स फ्रॉम नाउन और प्रोनाउन. नाउन इज सिंपली द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, एंड प्रोनाउन्स आर लाइक ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, एटसेट्रा. नाउ use any word which is either noun or pronoun, then will or shall. Now dear friends, remember these two are our helping verbs here. Now we have many helping verbs, or you can call them modals also. These are modals also, but we have to use either will or shall. Now there are two helping verbs. So आपको मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ. You will use shall with INV. Clear? You will use shall with INV, and other than INV आप हमेशा will use करेंगे. Now if you want to know the difference,
This is the difference of American and British English. In British English, I and we they go with shall, but in American English, everywhere we use will. So if you follow American English, you can use will everywhere. Nobody will stop you, nobody will create a trouble, and nobody will say that you're talking wrong. But if you gotta use shall, that's up to you. For example, sometimes I prefer to use shall with I and we. Now, after helping verb, depending on the subject, आप दोनों में से एक यूज करेंगे, वो मैंने बताया. उसके बाद you have to use first form of the verb. Remember, we have forms of verbs, first, second, third form. First form is called present form. So you have to use first form of the verb and object. Object means जिस चीज़ के ऊपर वो काम हो रहा है. Again, object also comes from noun or pronoun. Now, examples. Now I have taken she. She will participate in the game. वो गेम में हिस्सा लेगी. Now this is regarding this girl. She is a pronoun. तो हमने उसके बारे में बात की कि वो गेम में हिस्सा लेगी. She will participate in the game. Now here I have taken I. I shall read in the evening. मैं शाम को पढ़ूंगा. I shall read in the evening. Why it is shall here? Because with I and we, it's my choice that I wanted to use shall, so I use shall. If you even want to say that I will read in the evening, still it is correct. There is no problem with that. It's accurate, it's proper, it's correct. Now, any future tense जिसमें आप इस तरीके से करें will be your positive, will be your affirmative sentence. आप बहुत से examples बता सकते हो, बना सकते हो. Negative means helping verb plus not and helping verb, first form of the verb. Always remember, dear friends, helping verb के बाद not लगाना है negative के लिए. याद रहेगा? Helping verb, HV का मतलब helping verb. Helping verb यहाँ पर क्या है? Will और shall. नोट लगाएंगे और फिर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. बाकी सब चीज़ें सेम है. डोंट टच अदर थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट मैंने ले लिया इट विल नॉट वर्क, फुल स्टॉप. ये काम नहीं करेगा. इट विल नॉट वर्क. सपोज आई बॉट अ मशीन एंड माई मशीन एक्चुअली वॉज न्यू एंड व्हेन आई ब्रॉट इट होम, मैंने उसको कोशिश की चलाने की तो वो काम नहीं कर रहा था. तो मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि ये मशीन काम नहीं कर रहा. उसने बोला नो इट विल नॉट वर्क. आई सेड व्हाई? आई आस्क्ड व्हाई. कहता है क्योंकि ये आपके अकॉर्डिंग नहीं है, सो इट विल नॉट वर्क. यू डोंट बाय दिस मशीन, इट विल नॉट वर्क इन योर होम. Okay, you need to buy the latest one, etc. There can be many examples. They will not like this food. Suppose मेरे घर में कुछ मेहमान आ गए और उन मेहमानों को मैंने कुछ अच्छा फूड खिलाना था. तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि मैं क्या उन्हें पिज़्ज़ा ऑफ़र कर दूं या मैं उन्हें बर्गर ऑफ़र कर दूं. कहते नहीं, दे विल नॉट लाइक दिस फूड. वे इस खाने को पसंद नहीं करेंगे. दे विल नॉट लाइक दिस फूड. Right? Sometimes you will not like exotic food. Exotic means food from other country. It's not true that everyone likes pizza, everyone likes burgers. Maybe you never like those foods, and when you go to eat them and you say to other, no, I don't like it, and you will not like it. Now, you will not understand the problem. Suppose आपने अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया अपने फ्रेंड को कि मुझे एक प्रॉब्लम है, प्लीज़ मुझे उसका सोल्यूशन बताएं. तो आपका फ्रेंड उसे समझ ही नहीं पा रहा, उसे नहीं बता पा रहा क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं है. तो आपने बोला यू विल नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. तुम प्रॉब्लम को नहीं समझोगे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा. यू विल नॉट अंडरस्टैंड, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मीन्स यू डोंट हैव दैट माइंड सेट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. मूविंग ऑन टू द इंट्रोगेटिव. रिमेंबर, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज इंट्रोगेटिव. A lot of people speak this word interrogative. It's not interrogative, it's interrogative, right? Interrogative मैंने यहाँ लिखा है क्या और ये लिखा है plus. Means this interrogative is positive. It means I am going to make questions here which are positive, no negative here. Remember, हिंदी में क्या से शुरू होने वाले sentences हैं यहाँ पर, dear students, dear friends. जब भी आप कोई भी क्या से शुरू करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है? आइदर या हाँ या ना. फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्या तुम ये टेंस सीखोगे? राइट? क्या तुम मेरी बात सुनोगे? क्या तुम ये टेंस सीखोगे? विल यू अंडरस्टैंड इट? विल यू एंजॉय दिस? विल यू लाइक दिस वीडियो? विल यू लाइक द कंटेंट? विल यू कॉमेंट?
right? Will you share this video, etc etc. These are all future but question. Remember क्या से शुरू होने वाले हैं यहाँ पर. So क्या होता है, इसमें हम what नहीं लगाते हैं. Remember in Hindi when we make such kind of interrogative, in other word this is also called as yes no interrogative. Yes no interrogative means आपका जो पर्पस है वो हाँ या ना पूछना है, तो आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब शुरू में कर देंगे. You take any structure and in that structure use the helping verb of that structure in the beginning, that becomes interrogative. Do not use WH, what, when, where, why. No, because only with the use of helping verb आपको हिंदी में क्या वाले एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं. एंडिंग्स वही रहेगी, गागेगी. तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल पहले आ गया. So will you come late, and in writing we use question mark. In speaking we don't say question mark. हम बोलते हैं क्या तुम लेट आओगे. मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि हम खेलने के लिए मिलते हैं, वो कहते हैं ठीक है मैं मिलूंगा तुमसे, I'll meet you. पर वो कहता है कि मैं कहीं काम जा रहा हूँ अभी और मैं आऊँगा मिलने. तो मुझे डाउट हो गया, मैंने बोला will you come late, क्या तुम लेट आओगे. So shall I help you. Remember this is very important. आप बहुत बार ऐसा सेंटेंस बोलते हैं IV के साथ कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं. Shall I help you? Shall I tell you the truth? Shall I give you a cup of coffee? Shall I take this? क्या मैं इसको ले लूं? Shall I close the door? Shall I open the window? Shall I switch on the fan? Shall I, shall I, shall I, shall we, etc. Alright? Will they win? क्या वे जीतेंगे. Remember, जिसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगता है, क्या से हिंदी में बिगिन होता है, हमारा फ्यूचर टेंस कर रहे हैं हम, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इसका हेल्पिंग वर्ब विल रहता है, विल और शैल, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट आप विल और शैल को बाहर रखेंगे. अब बात करते हैं WH इंट्रोगेटिव्स. डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो WH इंट्रोगेटिव्स होता है उसमें आप WH वर्ड यूज करते हैं. मेनली दे आर 7. What, when, where, why, who, which, how. This is how you gotta remember them. What, when, where, why, who, which, how, etc. बाकी which के साथ noun लगाया जाता है. For example, which car, which country, etc. जब आप which को use करना चाहते हैं. उसी तरीके से how के साथ भी variety use हो जाती है, जिसको आप adjective लगा लेते हैं, adverbs लगा लेते हैं. For example, how much, how many, etc. अकेले हाउ का मतलब कैसे है, लेकिन हाउ के साथ जब ये वर्ड्स यूज होते हैं, हाउ मच, हाउ मैनी, एडजेक्टिव एडवर्ब्स यूज हो जाते हैं, तब मीनिंग कुछ और हो जाता है. हाउ मच विल यू ईट, कितना खाओगे तुम. हाउ मच विल यू इंजॉय, कितना इंजॉय करोगे तुम. नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर. ये सेम स्ट्रक्चर जिसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ WH वर्ड को शुरू में लगा दो. अगर इट मीन्स इसी सेंटेंस में मैं WH कर दूं ऐड, तो ये मेरा इस कैटेगरी में ऐड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, वाई विल यू कम लेट, तुम लेट क्यों आओगे. रिमेंबर, आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लुक हियर, आई ऑलवेज टीच अबाउट 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड दिस वन इज नंबर 4. इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, बट अभी उसको आप रुक जाए, आप अभी इंट्रोगेटिव पॉजिटिव यूज करें. लेकिन अगर उसे बनाना है तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको नोट लगाना होगा, विल यू नॉट कम, जो कि अभी इन द बिगिनिंग, बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच इन अ वेरी ईजी मैनर, ये भी पॉसिबल है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है, लेकिन अभी हम सिंपल रखते हैं. तो दिस इज आई कॉल नंबर 3, दिस इज आई ऑलवेज कॉल नंबर 4. तो ये जो नंबर 3 है, जिसमें हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, विल यू कम लेट, will you come late. Now what is number 4? Just add WH word in the beginning and it becomes number 4. यानी कि नंबर 3 से नंबर 4 में आने के लिए आपको सिर्फ WH word यूज करना है. तो आप देखेंगे what, when, where, why, who, which, how. तो मैंने what यूज किया. What will the scientist do? साइंटिस्ट क्या करेंगे. What will the scientist do? Dear students, dear friends, अगर मैं यहाँ पर इसको हटा दूँ तो ये मेरा नंबर 3 है, वापस फिर से ये मेरा नंबर 3 है. फॉर एग्जाम्पल, विल द साइंटिस्ट डू, फॉर एग्जाम्पल, विल द साइंटिस्ट फाइंड द वैक्सीन ऑफ कोरोना, राइट. क्या साइंटिस्ट कोरोना की वैक्सीन ढूंढ लेंगे. नाउ इफ आई, व्हाट विल द साइंटिस्ट डू, यानी कि साइंटिस्ट क्या करेंगे.
ध्यान से देखेंगे, जो नंबर 3 होता है इसकी बिगिनिंग में हिंदी में क्या आते हैं, जितने भी सेंटेंस आप हिंदी में क्या से बोलते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। और जितने भी जब आप वापस WH लगा देते हैं तो जो क्या, कब, कैसे, क्यों वगैरह मिडल में आते हैं हिंदी में। ध्यान रखेंगे, हम लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं बिकॉज वी यूज़ हिंदी लैंग्वेज, तो हमारी हिंदी में हमें समझना होगा हिंदी से इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा। तो जिन सेंटेंस के शुरू में क्या आता है वो नंबर 3 होते हैं, जिसमें कब, कैसे, क्या वगैरह अंदर आते हैं वो नंबर 4 होते हैं, और इन वर्ड से हम हमारा नंबर 4 सेंटेंस बनाते हैं। तो व्हाट विल द साइंटिस्ट डू, साइंटिस्ट क्या करेंगे, व्हेन विल शी गेट फ्री, वो कब फ्री होगी, रिमेंबर एंडिंग्स इज गोना बी सेम। व्हेन विल शी गेट फ्री, वो कब फ्री होगी, वेयर शैल आई कीप दिस बैग, वेयर शैल आई कीप दिस बैग। सपोज मैं एक बैग लेके आया, हम कहीं बाहर से आ रहे हैं, तो मैंने मम्मा को पूछा कि ये बैग मैं कहाँ रखूँ, तो वेयर शैल आई कीप दिस बैग, मम्मी मुझे ये बैग कहाँ रखना है, या ये बैग मैं कहाँ रख दूंगा, राइट। बट दिस इज हाउ वी से वेयर शैल आई कीप दिस बैग। Why will the government lock the states? Remember these days, this video is being made during Corona pandemic, and in this period, the government is locking the states and country, and it's not easy to go outside now. Maybe the government will lock the country, means maybe they will apply lockdown. But why will the government lock the states? That's the last sentence. Why will the government lock the states? Why will the government lock the states? कि सरकार क्यों lock कर देगी states को? Why will the government lock the states? Now dear students, this is future indefinite. I hope you have understood it. अगर आपको ये वीडियो समझ में अभी नहीं आया, दोबारा से देखिए इस वीडियो को, आपको ज़रूर समझ में आएगा। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, स्टिल इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, एंड प्लीज़ वॉच अदर वीडियोज़ ऑल्सो इफ यू वांट टू लर्न ऑल अबाउट टेंसेज। थैंक यू, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।